क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या चीजें इकोनॉमी को ड्राइव करती है? Why production rises? Why jobs are created? Why income changes? The secret lies in just one concept, that is the aggregate demand. So let's decode the real force that drives the economy. देखते हैं कि ये क्या है, ये फोर्स, ये कौन सा फोर्स है जो इकोनॉमी को चलाता है, ड्राइव करता है इकोनॉमी को। Hi everyone, welcome back to the channel. In today's session, we're going to explore one of the most important topic in macroeconomics, that is the aggregate demand and its related concept. In this session, you will learn what is the meaning of aggregate demand and how it is made up of consumption, investment, government expenditure and net export, and why it plays a key role in determining the level of income and employment in the economy. ये सेशन देखने के बाद you will not only understand the meaning of aggregate demand, but you will also be able to answer all the important questions which are related to this topic very confidently. इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखना, अदरवाइज आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ये जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज द value of final goods and services that are planned to be purchased during a particular year। जैसे आप लोग यहाँ देखिए एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग कैसे लिखा हुआ है, देखते हैं। It refers to the total value of final goods and services which all the sources of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ये है एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग। और इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें जुड़ा हुआ है देखते हैं। In other words, if we want to define the aggregate demand, that is, you can see here, aggregate demand is the aggregate expenditure. What is it? It is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period. So, aggregate demand and aggregate expenditure both are same. उसके बाद आप लोगों को याद रखना है और क्या क्या पॉइंट देखिए यहाँ में। Aggregate demand refers to planned expenditure and not the actual expenditure। aggregate demand क्या है? ये planned expenditure है, ना कि ये actual expenditure है। ये बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। और aggregate demand is a flow concept। क्यों ये flow concept है? क्योंकि इसको मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। यहाँ देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज ए flow concept as it is generally measured for a period of an accounting year. After that, now let's see, here you can see, so aggregate demand is the total expenditure that all households, firms, government and rest of the world are planning to incur during a given period of time। फिर उसके बाद ये एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, ये दोनों कॉन्सेप्ट में हम लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखते हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड और ये मार्केट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। इधर देखिए, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी। टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा का पूरा एंटायर इकोनॉमी में यही चीज को बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। व्हेयरएज मार्केट डिमांड क्या है देखते हैं। मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट। ये क्या है? एक ही कमोडिटी का टोटल डिमांड, क्योंकि कमोडिटी या तो गुड्स सेम रहेगा, यही सेम गुड्स का अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट डिमांड करते हैं मार्केट में, यही चीज को क्या बोला जाता है? मार्केट डिमांड। इसलिए हम लोग ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स फ्रॉम वेयर डिमांड comes? After adding all those demands we get the aggregate
demand. Now you can see, so the components of aggregate demand. First component is private or household consumption expenditure. After that, investment expenditure, then government expenditure, then after that, net export. Now let us try to understand in detail each sector or each components of aggregate demand. Here, first one is private or household consumption expenditure. What is it? Now let's see. So here, household or private consumption expenditure is the total expenditure. What it is? That is the total expenditure incurred by households on purchase of goods and services during an accounting year. ठीक है, फिर अभी और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें क्या है, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्या है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या है ये एक्स एन टी है. एक्स एन टी मीन्स प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सी व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज. यू कैन सी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स. जो कैपिटल गुड्स में जितने भी प्राइवेट फर्म्स है इन्वेस्टमेंट करते हैं. इट इंक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा एंड चेंज इन इन्वेंटरी. दैट इज, ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या तो एक्सपेंडिचर होते हैं फिक्स कैपिटल में जो पैसा खर्चा किया जाता है, और उसके बाद जो चेंज इन स्टॉक में जो पैसा खर्चा किया जाता है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, यही चीज को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट expenditure. Then third component you can see here, third component is, that is government expenditure. Now let's see what government expenditure is. So government expenditure is the total expenditure incurred by government on consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy. ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टोटली इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर के ऊपर में डिपेंड करता है. सोशल वेलफेयर के लिए ही ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ये एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. आफ्टर दैट लास्ट कंपोनेंट इज व्हाट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट नेट एक्सपोर्ट इज. फर्स्ट लेट अस सी, एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यह है एक्सपोर्ट. एंड इंपोर्ट refer to demand of a resident of the country for the goods that have been produced abroad. ये है export, ये है import, and the difference between export and import is called the net export. So this is all about the components of aggregate demand. ये सब पूरा का पूरा सेक्टर्स है इकोनॉमी में, जो सेक्टर्स का साइड से पूरा का पूरा डिमांड किया जाता है. अगर यही सब सेक्टर्स का डिमांड को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं, यही इसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट मतलब क्या है, टोटल. क्या है ये एग्रीगेट मीन्स, क्या है ये टोटल. इसलिए हर एक सेक्टर का डिमांड को अगर हम लोग टोटल करते हैं, जो भी डिमांड हम लोगों के सामने में आ जाता है, यही इसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड. नाउ इन फोर सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल क्या क्या होता है. सो फोर सेक्टर्स इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इक्वल क्या क्या होता है, यहाँ में देखिए. एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I means investment expenditure, G means government expenditure, और ये X minus M means क्या है, ये net export. So aggregate demand equal C plus I plus G plus X minus M. But in our analysis, so we are focusing on two sector model. So in two sector model, so aggregate demand equal consumption plus investment only. So C plus I. So here in our analysis only we will take into consideration only, that is two sectors, that is consumption expenditure and investment expenditure. So in two sector model aggregate demand equal क्या है, ये aggregate demand equal C plus I. Now after that let us try to understand diagrammatically the concept of aggregate demand. अभी आप लोग ये टेबल में देखिए, यहाँ में क्या दिया है, यहाँ में दिया है इनकम दिया है, यहाँ में दिया है कंजम्पशन, यहाँ में इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हम लोग का एग्रीगेट डिमांड. ये टेबल में इनकम लेवल, वेरियस इनकम लेवल दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. फिर उसके बाद कंजम्पशन में क्या है, ये 40, 120 ऐसा करके अलग अलग कंजम्पशन लेवल का वैल्यूज दिया हुआ है. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट. लेकिन और एक बात आप लोग यहाँ में ध्यान रखिए, यहाँ में जो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग
ले रहे हैं, ये क्या है, हम लोग इसको ले रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ना कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम लेवल का ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। फिर उसके बाद एग्री डिमांड इक्वल क्या होता है, सी प्लस आई। यहाँ में आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ में जब इनकम लेवल, यहाँ में देखिए जब इनकम लेवल जीरो होता है तो ये जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी क्या है, कंजम्पशन हो रहा है। देखिए कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हर एक लेवल ऑफ इनकम में सेम रहेगा, नो डाउट। जिससे हम लोग का यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग क्या दिया है, 20 दिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन कंजम्पशन में क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी क्या है, कंजम्पशन होता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी क्या रहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता है। क्यों ये ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता है, क्योंकि हम लोगों को जीने के लिए बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज हमें कंज्यूम करना होता है इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। फिर अभी यही टेबल को अगर हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दिखता कैसे, ये एग्रीगेट डिमांड देखिए, यहाँ में एक्स एक्सिस में लिया हुआ ये क्या है, ये इनकम लिया हुआ है। फिर वाई एक्सिस में ये एग्रीगेट डिमांड या तो एक्सपेंडिचर लिया हुआ है। तो यहाँ में ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, ये है जो मेन ये वाला कर्व है, ये जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी प्लस आई। तो यहाँ तक ये क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज जब हम लोग का इनकम लेवल जीरो होता है फिर भी ये कंजम्पशन रहेगा। और इतना तक ओ आर, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ऑटोनोमस क्या है, इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों का ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यह तो जो हम लोग का कंजम्पशन है और जो हम लोग का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वही होता है हम लोग का एग्रीगेट डिमांड। जैसे आप लोग डायग्राम में भी देखिए, ये इतना इतना क्या है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और इतना क्या है, ये कंजम्पशन है। अभी ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो इतना तक ये हम लोगों का क्या है, ये टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है। फिर एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है। अब देखिए ये हमें क्या है, हाफ है। इस पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या है, ये इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। मीन्स इनकम अगर इंक्रीज होगा फिर उसके बाद क्या है, ये हम लोग का कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है या तो हम लोग का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम लोग का डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड को हम लोग ड्रॉ या तो डायग्रामेटिकली हम लोग एग्रीगेट डिमांड को इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। Now let us try to understand various important points which are related to aggregate demand। यही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो important points related होता है कोई भी एक कॉन्सेप्ट से। देखते हैं वो सब क्या क्या important points है। First important point is that aggregate demand is equal to consumption plus investment, C plus I। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों एग्रीगेट डिमांड इक्वल C plus I है? नाउ एग्रीगेट डिमांड इज एज्यूम टू बी फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये एज्यूम किया जाता है कि ये एनालिसिस में कि एग्रीगेट डिमांड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ में देखिए पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। मीन्स कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर हम लोग का इनकम जीरो होता भी है। तो ये होता क्यों है, अभी देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। इनकम लेवल जीरो होने से भी हम लोग का क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है। एक्चुअली ये होता क्यों है, इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड certain basic goods and services to sustain themselves even if income level is zero। यानी जीने के लिए लोगों को मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूरी होता है। मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग कंजम्पशन ही नहीं करेंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम लोग का डिमांड का क्या फायदा है, इनकम का क्या फायदा है। इसलिए अगर हम लोग का इनकम जीरो भी हुआ तो फिर भी हम लोग का क्या रहता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है। इसलिए कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है और कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे हम लोग यहाँ में देख पा रहे हैं, यहाँ में जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ये कंजम्पशन कर्व। देन थर्ड पॉइंट इज दैट स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड। क्या होता है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है, अपवर्ड है। क्यों अपवर्ड है, देखिए अभी, इट इज बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि जैसे ही हम लोग का इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग का कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है कंजम्पशन और इनकम में। हाउएवर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। लेकिन जो एक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है कंजम्पशन का, जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है ऑब्वियसली हम लोग का क्या होता है, कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज
लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये क्यों होता है? बिकॉज आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग आउट ऑफ देयर इनकम। जैसे ही एक लेवल ऑफ इनकम हमें अचीव हो जाता है तो वही लेवल ऑफ इनकम से हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पार्ट ऑफ द इनकम से हम लोग सेविंग भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोग का जो प्रोपोर्शन है इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनकम से क्या होता है, कम होता है। हम लोग एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एग्रीगेट सप्लाई को बिना डिस्कस किए तो ये टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो अभी हम लोग बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं समझने के लिए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अभी देखते हैं इसका एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, देखते हैं क्या है ये एग्रीगेट सप्लाई। दैट इज एग्रीगेट सप्लाई refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time। एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, प्लान टू परचेज, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू होता है। ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होता है, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, प्लान टू परचेज होता है, बट यहाँ में एग्रीगेट सप्लाई में क्या होगा, ये प्लान टू सेल होता है। प्लान जो प्लानिंग करते हैं सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में, यही इसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ में देखिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल क्या है, नेशनल इनकम। क्यों एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नेशनल इनकम होता है, यही चीज को अभी ट्राई करने समझने के लिए। अभी देखते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें मिलता है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सब कहाँ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो क्या है, कौन कौन सा फॉर्म में होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में पूरा का पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर अभी जो सम टोटल ऑफ दिस फैक्टर्स इनकम, ये तो जो सम टोटल है जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, ये जो फैक्टर इनकम है, ये पूरा का पूरा फैक्टर इनकम को अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल में और अगर हम लोग नेशनल लेवल में अगर इसको हम लोग क्लास करते हैं तो यही चीज हमें क्या देता है, नेशनल इनकम। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई है ये क्या है, हम लोग नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्या आप लोगों को ये चीज पहले अच्छी तरीके से मालूम था कि हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई ही हम लोग का क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। फिर उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट्स है अभी देखते हैं। जो एग्रीगेट सप्लाई, अभी तो हमें ये पता चल गया कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ये इनकम होता है। हम लोगों को मालूम है कि इनकम कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो हम लोगों को इनकम मिलता है, ये इनकम को या तो हम लोग ये जो टोटल इनकम का हम लोग एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, ये कंजम्पशन और सेविंग्स होते हैं। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है देखिए, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल C प्लस S, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। अभी देखते हैं, अभी अगर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली अगर दिखाते हैं तो कैसा होगा ये एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ में जैसे मैं यहाँ में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे ये देखिए यहाँ में ऐसा करके कर्व होगा, ये होगा 0। तो यहाँ में होगा, यहाँ में आउटपुट या तो इनकम या तो यहाँ में क्या होगा, ये सॉरी एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर इसमें क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरीके। तो यहाँ में जैसे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल क्या होता है, हम लोग का इनकम होता है। तो अभी ये जो एग्रीगेट सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, बट ये क्या होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। ये कितना होगा, 45 डिग्री एंगल, क्योंकि यहाँ में हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का इनकम इंक्रीज होते जाता है तो उसके बराबर ही क्या होता है, हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई होता है। अगर यहाँ में 1 होता है तो यहाँ में भी एग्रीगेट सप्लाई भी 1 होगा। अगर हम लोग का इनकम या तो आउटपुट यहाँ में 2 होता है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 2 होगा। फिर अगर इसको अगर हम लोग ऐसा करके हम लोग जोड़ देते हैं ऐसा करके, तो जो भी ये जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐड करके अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यही लाइन ही हम लोग का क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। तो ये लाइन एग्जैक्टली कितना डिग्रीज का बनता है, ये 45 डिग्रीज का बनता है। और ये एग्रीगेट सप्लाई 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग का आउटपुट 0 होगा तो हम लोग का इनकम भी 0 होगा। लेकिन हम लोग का कंजम्पशन का जो एग्रीगेट डिमांड का वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम में भी क्या होता है, ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जब हम लोग का आउटपुट 0 होगा, हम लोग का प्रोडक्शन 0 होगा, तो हम लोग का सप्लाई भी 0 होगा, सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का 0 से स्टार्ट होता है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों को
पूरा का पूरा ये एग्री डिमांड का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा। आज के सेशन में इतना ही, पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड, ये मैं आप लोगों को दूंगा पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।